Hello students, good morning to all of you. Students, today we will learn about the magnetic field due to current carrying circular coil. We derive the formula for magnetic field by using Biot-Savart law and then we will discuss some special cases and their solution. So we will start. Magnetic field due to current carrying circular coil. C. Okay. For this situation हमारे पास बच्चों दो कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट, at center of the coil, center of the coil, and second situation we learn that on the axis of current carrying circular coil. इन दो सिचुएशन पे हम सीखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द ओके. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. लेट a circular coil of radius r, or we say a, of radius a with center o, due to which we need to calculate the magnetic field. Let the current is entering from point A and moving anti-clockwise and passing to the point B. Okay, therefore we need to calculate magnetic field at the center of this coil carrying current I. Let the length of this circular, student, this should be a straight wire which will taken in the circular form. ठीक है, तो मान लिया कि इसकी जो लेंथ है उसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में रखा हुआ है. तो फॉर वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, से PQ of length DL. Okay, due to this the magnetic field at the center, so this distance from the center of the observation is A. Therefore according to Biot-Savart law, magnetic field at the center or small magnetic field due to current element
dl at center O is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon a square, because distance from the current element to the center is a. Here this point P is at 90, so sin 90 degree is equal to 1. Therefore magnetic field at O is mu naught upon 4 pi I dl upon a square. This is equation first. Clear? Therefore if the total field due to the current wire in the circular form at center is given by total magnetic field at center due to circular coil is B is equal to integration of B, that is mu naught upon 4 pi I dl upon a square. Clear? So here this portion is a constant, that is mu naught upon 4 pi I a square and integration of dl. Okay, so the value of integral dl is the total circumference of this circular coil, that is magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi I a square into 2 pi a, where integral dl is equal to 2 pi a, circumference of circle. ओके, नाउ अब इसके पॉइंट्स को समझिए बच्चों। पहला जो आपके पास फील्ड आएगा डेट इज 4 पाई 2 पाई ए here this a cancel by this 2 pi I upon a, एक रिजल्ट हमारे पास ये हो जाता है। सेकंड रिजल्ट देखिए, जब हम इस 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो म्यू नॉट I upon 2a, this is second result. Okay, so this is the magnetic field or required magnetic field at center due to a current carrying circular coil. Just copy it. स्टूडेंट, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को समझते हैं। देखिए, अगर हमें एक आर्क सेंटर के साथ गिवन कर दे विद एन एंगल थीटा और करंट इसमें इसी तरह से फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो इस केस में आप निकालेंगे सर्कुलर कॉइल के लिए ही
तो ये एक सेक्टर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्टर ए ओ बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट आता ही है, ठीक है। बट 1 मिनट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस वैल्यू इज थीटा अपॉन 360। ये वैल्यू आप याद रखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्टर। और यहाँ पे अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये कोई क्वाड है लाइक दिस, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यही 1/4 हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकेंगे। ओके, इस वैल्यू को आप पूरा लिख लीजिए सिंपल रूल के साथ ही। 2a तो आपका रिजल्ट है ही, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और जो आपके पास ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो थीटा अपॉन 360 टाइम आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिचुएशन इस तरह से आ जाए, ऐसी सिचुएशन, और आपसे कहे कि सेंटर पे इससे कॉइल, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एट सेंटर बताइए, तो ये एक फुल सर्किल है एंड दिस इज अ सेमी सर्कल। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फुल सर्किल। ओके, नाउ अब हम दूसरा वाला केस लेते हैं इसका। ये सेकंड केस थोड़ा डिफिकल्ट और इजी दोनों ही है। सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular coil on the axis of coil. Due to current carrying circular coil on the axis. Okay. मान लीजिए ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ओके, विद रेडियस a, इससे x डिस्टेंस पे एक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एट x डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर दिस consider 2 points diametrically opposite to each other. Let the first point is A and another point is B. So for calculating the magnetic field at this point P, we are joining the 2 point with this P. Okay,
ये हमारे पास सिचुएशन है। तो एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट ए ऑन पी कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बी एट पी। ओके, तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट है ऑफ लेंथ dl, okay, and similarly at b also this is a current element dl, okay। तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वी कैन कैलकुलेट दिस बाय अप्लाइंग द बायो-सावर्ट लॉ, okay। Consider a current carrying circular loop having current I with radius a and center O. Therefore, magnetic field due to current carrying coil apart x distance on the axis of coil at P, okay, is given by बायो-सावर्ट लॉ। For current element dl at A, okay, that is magnetic field is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon a square, okay। Therefore, magnetic field mu naught upon 4 pi I dl a square sin 90 is equal to 1, because this current element meet angle 90 with the dl to the center of coil, ठीक है। सिमिलरली, तो ये वाला जो आपके पास फील्ड आएगा, इसको हम dB1 कह देते हैं, ओके, dB1। नाउ ड्यू टू a square, in place of a square we are using AP स्क्वायर, ठीक है। और AP का वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड at P due to current
एलिमेंट dl is dB1 mu naught upon 4 pi idl अपॉन bp स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा साइन थीटा को हम बिकॉज सेम यहाँ पे 90 है तो हम इसको भी 1 कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा dB2 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो this magnetic field is dB2 due to this, and we observe the value of dB1 and dB2 are equal. Okay, so the net or total magnetic field due to the coil at P is calculated by taking help of vector resolution of magnetic field at point P due to the current element at A, dl at A and current element dl at B। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, करंट आपका जो फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये करंट फ्लो करके गया, ठीक है। ये वाले को देखिए नीचे करंट है, तो ये अगर ऐसे लेंगे तो ये हमारे पास करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 90 डिग्री पे होगा जैसे कि ये है। क्लियर? नाउ सपोज here on the axis perpendicular this angle is theta and the magnetic field at P due to this is also theta or we say phi, क्योंकि थीटा तो हम पहले यूज कर चुके हैं, फाई। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट बी को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर इज साइन फाई, और ये वाला जो रिजल्ट होगा हमारा 1 मिनट, ये लाइन के साथ थीटा एंगल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइन परपेंडिकुलर ठीक है। परपेंडिकुलर साइन फाई, और ये इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास डी बी साइन फाई, और ये रिजल्ट हो जाएगा डी बी कॉस फाई। ओके, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट करंट एलिमेंट पॉइंट पी। सेकंड, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन आएगी, डी बी साइन फाई, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा दिस इज डी बी कॉस फाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट
कि द वैल्यू ऑफ dB1 and dB2 are equal, therefore the vertical components which we say dB sin phi, and इसको हम B1 B2 कर लेते हैं. दिस इज B1 B2 B1 B1 B2. ठीक है. तो the vertical components are cancel their effect because having same magnitude but opposite in direction. So the net magnetic field due to the circular coil at P is given by the sum of the cos components. ठीक है. Therefore ये पहले हम निकाल लेते हैं. टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P. ओके. तो ये आ जाएगा दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ dV, और हम यहाँ पे यूज करेंगे एस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 1 मिनट. Okay, student, there is one problem. Angle made by the magnetic field component with this perpendicular line phi. तो ये हमारा cos phi होगा और ये sin होगा. सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया था इसमें. sin phi, दिस वन इज cos phi. तो cos कंपोनेंट अपने को ये आ जाएगा आपके पास sin phi. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन आ जाएगा ये है और एक ये. तो इसके लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन फाई इंटीग्रेशन ऑफ dl. ठीक है. तो दिस रिजल्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ दिस dl इज 2 पाई a एंड साइन फाई. अब हम थोड़ा सा साइन फाई को समझते हैं. साइन फाई इन द राइट एंगल ट्राइंगल PAO or POB. In both case, perpendicular is radius of the coil and hypotenuse is this distance. Therefore, here sin phi is equal to
a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ. ठीक है. देयरफॉर magnetic field at point P due to the coil is mu naught upon 4 pi I x square plus a square a upon एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू 2 पाई ए. ओके. तो यहाँ स्टूडेंट्स ये फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगी डेट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए 2 पाई ए आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज पावर 1 एंड दिस इज 1/2. दिस विल बिकम 3/2. ओके. तो एक रिजल्ट तो आपको ये वाला मिलेगा. सेकंड, बी इज म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. okay, this result. Just copy till this, then we take some special case for this magnetic field. देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल केस. First, when point P is very close to coil, अगर ये बहुत पास है तो हम कह सकते हैं कि A is very greater than X, therefore B, इस वैल्यू ये लास्ट से ही ले लेते हैं, डेट म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. ओके. तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा. 1 minute. This one is a square. Why it is a square? Because a and this a here also a. ओके. तो ये कैंसिल होके ये a स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है. तो अब आपके पास फाइनल रिजल्ट बचेगा, डेट इज म्यू नॉट अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब. तो ये क्यूब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जो कि आपने सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए जस्ट दिस डेरिवेशन आपने कैलकुलेट किया है. Second point, when P far to the coil,
therefore x is very very greater than A. So the magnetic field B is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi a square I upon x square. ओके, यहां पे पाई ए स्क्वायर इज द एरिया. ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए. Here pi a square is area of coil, therefore B is equal to mu naught 4 pi 2a I upon x square. स्टूडेंट, ये जो a I है, this is the magnetic dipole moment, okay, which will given by m. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आएगा वो आ जाएगा 4 पाई 2m अपॉन 1 मिनट, दिस विल x क्यूब. ये लीजिए. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस. ओके, एंड just we understood about the nature of this coil. This is magnetic field due to circular coil on the axis on point, axial point, which is equal to magnetic field due to bar magnet at axial point. Okay, see, ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ कंडीशंस को समझ लेते हैं. अगर करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इन द कॉइल और जब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इन द कॉइल. हमने इससे पहले अपनी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल. ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द टू केसेस को समझिए बच्चों. फर्स्ट, ये कंडीशन है, अगर स्ट्रेट वायर है तो हम मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन को थंब से दिखाते हैं और कर्ल ऑफ फिंगर, ये कर्ल ऑफ फिंगर, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं. सेकंड, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी और कर्ल ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताती है और थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल का केस है. हमारी जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रही है. क्लियर? तो आउटवर्ड जो फील्ड बनेगा बाहर की तरफ आता हुआ, इस केस में जो हमें पोल मिलता है दैट इज
नॉर्थ पोल। ओके, और जो दूसरा केस है इसमें हमारे पास व्हेन द करंट इज क्लॉकवाइज, तो हमें साउथ पोल मिलेगा। क्लियर? तो कंडीशन को देखते हैं। जब करंट इसमें इस तरफ गया, ये, तो अगर हम इस वाली कंडीशन को लेते हैं तो ये करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट बाय दिस, तो ये आउटवर्ड। ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्थ पोल बना। दूसरे केस में करंट आपका ये है, फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड, मतलब एक पॉइंट पे ये नॉर्थ पोल बनाती है और सेकंड पॉइंट पे ये साउथ पोल बनाती है। तो एक जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होती है, इट इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑन द एक्सिस पॉइंट। ठीक है, थैंक यू।